तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आवाज़ आ रही है सारों को मेरी? यस सर, आ रही है आपकी आवाज़। ओके, मेरा ख्याल है शुरू करते हैं लेक्चर को और फिर इंशाल्लाह ज्वाइन करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, सो होपफुली आई विल बी अपलोडिंग दिस लेक्चर आफ्टर दिस लेक्चर एंड्स। सो लेट्स गो शेयर द स्क्रीन। Okay, hopefully you can see the slides. सर को स्लाइड्स नज़र आ रही है स्क्रीन पे? जी सर। Okay, so let's start with today's lecture. So before going into the detail, I'll just have a, I think, quick review of what we are doing last time. So I'm just writing some revision here. So okay, so in the class we have talked about the types of stresses and how it is applied on a structure. So if you remember, we have solved a problem in the class in which you have to find the stresses in two links, or you can say a structure with two links and a pin joint. So the idea of this subject is to enhance your understanding of stress and strain. So we are discussing in the class that these stresses are responsible for the failure in structures. So that's why it's very important to understand the let's say the magnitude, the direction, and the plane, so that we ultimately know that this is the direction which the stress is applied. This is a direction which could be dangerous. It can affect your structure. It can even causes catastrophic failure in your structures. So that's why it's critical. So just have a quick revision of the stresses. The stresses are generally of two types. One is called the normal stress, and second is called the shear stress. And in today's lecture, we will going through some mathematical understanding of these stresses. The normal stresses, the major definition of this normal stresses is if the force is applied perpendicular to the area, the stress is generally considered as normal stress, and if the force is applied parallel to the area, it's considered as the shear stress. So this is the major consideration. So just for a quick review, let's say we have a structure like this. So if this is the applied force on the both sides, so if this is the force and this is the area facing this force, so the stress will be applied will be normal stress. Whereas if this is the case and stress is applied here, this is generally called as so if the stress is in this direction, because this is the same area, then it is called the shear stress. So this is the idea of the normal stresses and shear stresses. Now the other types of stresses, like we're discussing compressive stress and all tensile stress, these are the manifestations or the further classic types of these stresses. मुझे एक्चुअली में स्क्रीन नज़र नहीं आ रही. अगर आप कोई कहना चाहते हैं तो बेशक माइक ऑन कह लें. अगर कोई कमेंट कर रहा है, मुझे आई डोंट नो, मैं कमेंट देख नहीं सकता स्ट्रेस का एक दफ़ा रिपीट कर दें. जी. shear स्ट्रेस को एक दफ़ा रिपीट करना सर. मैं रिपीट कर देता हूँ. सो शीयर स्ट्रेस बेसिकली अगर आप लफ्ज़ से देखें तो इसका मतलब होता है शीयर करना, यानी कि चीरना. और चीरने में अगर आप कभी भी गौर करें कि आप किसी कागज़ को फाड़ते हैं या किसी चीज़ को चीरते हैं, तो आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस एरिया के पैरेलल रहेगी जिसको आप चीर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि आप छुरी से कोई चीज़ काटते हैं, तो छुरी से आप जो चीज़ काट रहे हैं और जो सरफेस कट रही है, आप थोड़ा सा गौर करें कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन और जो सरफेस कट रही है उसकी आपस में क्या ओरिएंटेशन है.
ये इमेजिन कर सकते सर हैं सारे के पैरेलल एक पैरेलल है। इसे कहते हैं शीयर स्ट्रेस, यानी कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और जिस एरिया को आप काटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये डेफिनेटली शीयर स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, शीयर का मतलब होता है नॉर्मल भी चीरना। तो। जी जी जी, बोले बोले सर प्लीज। नॉर्मल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉर्मल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आप दो खींच रहे हैं दो चीज़ों को। अब जब आप दो चीज़ों को खींच रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पे आप कोई रबर बैंड खींच रहे हैं, अब आपकी जो जिस एरिया पे स्ट्रेस लग रहा है या जो एरिया टूटेगा अल्टीमेटली वो उसके परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बैंड है, ठीक है, और आप यह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर और इधर। अब आप जब इसको खींच रहे हैं तो ये स्ट्रेच होगा, तो इसका ये वाला जो एरिया है वो वर्नरेबल है। आप ये सोच सकते हैं अच्छा यार इस बैंड में तो ये भी तो एरिया है और ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल इसके पैरेलल है, इससे कोई वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एरिया वर्नरेबल नहीं है, ये एरिया टूटेगा नहीं। जो एरिया ख़तरनाक है वो ये वाला एरिया है। वो ये आपको कैसे पता है वो ख़तरनाक है? जो आप इसे खींचेंगे किस चीज़ में कमी वाक़ई होगी, वो इसके इस वाले एरिया में कमी वाक़ई होगी, यानी कि ये काम होगा। ये समझ आ रही है कि मैं इसे दो तरफ खींचूँ तो किस तरफ एरिया श्रिंक होगा, छोटा होगा, वो ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो इस नतीजे में जो स्ट्रेस पैदा होगी उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि एक ही स्ट्रक्चर में, अभी आगे जाके यही आज का लेक्चर का टॉपिक है कि एक ही स्ट्रक्चर में एट द सेम टाइम नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकती है और शीयर स्ट्रेस भी हो सकती है। वो कैसे, वो अभी हम देखेंगे इस लेक्चर में फर्दर। ठीक है, थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ है या फर्दर इसको एलैबोरेट करूं? जी सर क्लियर है। ठीक है, ये बड़ा इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 7वें 8वें सेमेस्टर तक भी क्लैरिफाई नहीं होता। देखिए स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। स्ट्रेसेस दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शीयर स्ट्रेस। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ एरिया का फ़र्क होता है, एरिया और फोर्स की ओरिएंटेशन का फ़र्क होता है। अगर फोर्स और एरिया आपस में परपेंडिकुलर हो तो ये नॉर्मल स्ट्रेस होती है, अगर फोर्स और एरिया आपस में पैरेलल हो तो ये शीयर स्ट्रेस होती है। बस ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसको बस इस तरह याद रखें। अब जो बाकी स्ट्रेसेस हैं वो इसकी मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्ट्रेस में आ जाती है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, ये टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो फर्दर नॉर्मल स्ट्रेस की एक टिपिकल टाइप है, जिसके अंदर फोर्स को हम आउटवर्ड लगाते हैं, यानी खिंचाव वाली फोर्स होती है, टेंशन वाली फोर्स होती है। फिर इसमें एक और जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, इस स्ट्रेस के अंदर सेम वही पोजीशन होती है, बट फर्क क्या होता है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अब क्या होती है, इनवर्ड होती है। अभी भी नॉर्मल ही है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द एरिया ही होती है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इसे हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और थर्ड इसकी जो फर्दर जो कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशन है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेस होती है, जिसके अंदर जब भी कोई स्ट्रक्चर बेंड करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर दूँ, जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बेंड करता है तो इसकी बेसिकली इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होता है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एलैबोरेट करने की कोशिश करूँ तो ये इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होता है। ये देखिए, सॉरी ये सेंटर से गलत बन गया, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो इसका जो अपर वाला पोर्शन है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस में होता है, यानी कि हाफ जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस में होता है, और जो नीचे वाला हाफ होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस में। ठीक है, अब ये जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है, क्योंकि ये भी नॉर्मल स्ट्रेस ही है, देखिए ये इसकी खासियत ये है कि एक ही स्ट्रक्चर में एक ही टाइम पे दोनों स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करती हैं। और जबकि अगर प्योर टेंसाइल स्ट्रेस का केस है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये प्योर टेंसाइल स्ट्रेस का केस है, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस नहीं हो सकती। बेंडिंग के लिए मोमेंट आर्म चाहिए होता है जो उसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी मैनिफेस्टेशंस हैं इसकी, यानी कि इसकी शक्लें हैं नॉर्मल स्ट्रेस की, फर्दर आगे टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये सारी नॉर्मल स्ट्रेसेस ही हैं। इसी तरीके से शियर स्ट्रेस की अगर टाइप करें तो इसकी एक स्पेशलाइज्ड टाइप, जिसे हम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कहते हैं। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेस भी कहते हैं। जी जी सर ये लास्ट वाला टेंसाइल स्ट्रेस दोबारा समझा दें एकदम।
मैंने आपको बताया ये जो प्योरली नॉर्मल स्ट्रेस की 3 फॉर्म्स है, टेंसाइल, कंप्रेसिव और बेंडिंग। ठीक है, इसके अंदर जो टेंसाइल होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपको लेट से ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फोर्स हमेशा एक्सियल डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा लेंथ के अलॉन्ग होगी। ठीक है, लेंथ के अलॉन्ग होगी, और ये टेंसाइल होगी। अगर इसी फोर्स को मैं रिवर्स कर दूँ इनवर्ड इस तरह, तो ये क्या हो जाएगी, ये टेंसाइल है तो ये क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव। और इस फोर्स को बजाय इस तरह लगाने के मैं ऐसे लगा दूं, ठीक है, यानी कि मैंने 90 डिग्री इसको अभी ये तो देखेंगे 180 डिग्री फ्लिप किया ना, अब मैंने इसको 90 डिग्री फ्लिप कर दिया तो क्या हुआ, ये बेंड हो जाएगा। तो क्या हो रहा है बेसिकली, क्या हो रहा है बेसिकली, हम फोर्स की डायरेक्शन को टिल्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस की जो मैनिफेस्टेशन है, जो नॉर्मल स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप है वो एमर्ज हो रही है। ठीक है, इसी तरह एक स्ट्रक्चर है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट है, जिसका मैंने आपको मिसाल दी, एक शाफ्ट है, चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, एक शाफ्ट है, मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसे फिक्स किया हुआ है, तो इसमें टॉर्शनल शीयर स्ट्रेस आएगी। अगर आप इसको गौर करें तो ये इसका फेस है, मैं इसको बना लूँ साइड व्यू से, और ये इसकी फोर्स है। ये अगर आप फोर्स आप ड्रॉ करें टेंजेंट में, तो फोर्स और एरिया क्या है आपस में, पैरेलल है ना, ये देखें, फोर्स ये है, एरिया ये है, ये भी ये। अब ये जब चूंकि आपने देखा कि फोर्स, बेशक फोर्स का इफेक्ट रोटेशनल है, फोर्स रोटेशनल भी हो सकती है, टॉर्क की फॉर्म में भी हो सकती है। अगर इसका इफेक्ट रोटेशनल है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास शीयर स्ट्रेस की टाइप है। इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि आपको शीयर और नॉर्मल का बड़ा क्लियरली अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है और शीयर स्ट्रेस क्या होती है। ये किसी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछते हैं। अब एक्चुअली में रिवीजन करने का मकसद ये कि अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। एनी क्वेश्चन? अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मांगेगा, थोड़ी सी आपकी जो है वो आपकी जो आप कह लें कि प्रीवियस नॉलेज हो, थोड़ा सा अटेंशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप थोड़ा गौर से देखें। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और होपफुली मैं इसको अपलोड भी कर दूँगा, तो यू हैव टाइम टू लिसन टू दैट। अच्छा, एक चीज़ मैंने फर्स्ट चैप्टर के हवाले से, ये फर्स्ट चैप्टर अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ बीर एंड जॉनस्टन का, और एक चीज़ मैंने इस दफ़ा की है कि खैर इस दफ़ा तो नहीं की, मैं तो काफ़ी अर्से बाद पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल मैंने कोर्स में इंक्लूड नहीं किए। उसकी वजह यह है कि मोस्टली वो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने स्टैटिक्स में किए हुए हैं, और इसमें सिर्फ एक स्ट्रेस का फ़र्क है। क्लास में करवाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि एक जब आप जो आपने फोर्सेस निकाली थी वो आप ऑलरेडी स्टैटिक्स में करते आए हैं, और मैंने आपको सिर्फ उससे एक स्टेप आगे जाके हमने देखा कि हमने स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल्स मैं इसके शामिल नहीं करूँगा, इवन उसके अंदर भी पेपर के अंदर भी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये चैप्टर को मैं यूज़ करूँ फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ताकि फिर जब आप ऑनवर्ड सेकंड चैप्टर में जाएं वहाँ पे भी न्यूमेरिकल जाएंगे, वो फिर स्ट्रेसेस के प्योर न्यूमेरिकल होंगे। अच्छा जी, जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली वो है स्ट्रेसेस ऑन एन ओब्लीक प्लेन। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको ज़रा पॉइंट समझिएगा ज़रा। मैंने आपको बताया था अब ये एक सरफेस है, और लेट्स से मैं ये एक फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये फोर्स मैंने इंक्लाइन कर दी है, ठीक है, फोर्स इंक्लाइन हो सकती है, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर को लोड कैसे किया जा रहा है। मैं आपको छोटी सी अगर मिसाल दे दूँ, फॉर एग्जांपल, जस्ट गौर से मेरी बात सुनिए, ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, या ट्रैवल कर रही है, और यहाँ से विंड आ रही है, विंड इधर आ रही है, लेकिन ये ट्रैवल कर रही है फॉरवर्ड। अब इसकी स्क्रीन के ऊपर एक लोड अप्लाई हो रहा है, इसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब इस स्क्रीन के लिए ये फोर्स एक ख़ास एंगल पे, अगर आप स्क्रीन देखें, स्क्रीन ऐसे है और फोर्स ऐसे है। अगर मैं स्क्रीन को सीधा करूँ तो फोर्स ऐसे हो जाएगी, सॉरी ऐसे हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर और जो फोर्स की ओरिएंटेशन है वो स्ट्रेट नहीं होती, वो टिल्ट हो जाती है एट सर्टेन एंगल। एंगल कोई भी हो सकता है। मिनिमम एंगल इसका होता है, जिस तरह हमने देखा, मिनिमम एंगल होता है 0 डिग्री, और मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है 90 डिग्री, और इसे उलट भी हो सकता है। लेकिन उलट इसलिए नहीं करते कि उलट वही चीज़ बन जाती है, यही। तो आप ये कह सकते हैं कि 0 से 90 तक फोर्स की वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। तो हम अब ये देखेंगे कि अगर हमारे पास
एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो फोर्स और सरफेस की ओरिएंटेशन है वो 90 डिग्री पे नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है। जिससे मैंने आपको पहले सारे केस बताया तो क्या बताया था, ये फोर्स है, इसके अंदर एक चीज़ क्या थी, इसका और इसका एंगल आपस में क्या है, 90 डिग्री। लेकिन लेट से अब 90 डिग्री नहीं है फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होगा, और 90 डिग्री नहीं है तो सॉरी ये 0 डिग्री है, सरफेस का 90 डिग्री, यस। सो अगर लेट से आप कहते नहीं अब 90 डिग्री नहीं, लेट से 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, जो कि होता है हमारे, मैंने आपको एग्जांपल दे दी विंड स्क्रीन की गाड़ी की। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है रियल वर्ल्ड में जहाँ पे जो फोर्स है वो सरफेस के नॉर्मल पे नहीं लगती। जब सरफेस के नॉर्मल पे नहीं लगती तो एक प्रॉब्लम जो पैदा होता है वो पैदा होता है कि फोर्स के आइडियली दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। मैं दोबारा ज़रा समझा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। अगर लेट से मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और मैंने आपको ये वजह बता दी कि वो क्यों लगती है, वो बेसिकली उसकी फिज़िक्स की वजह से होती है, जो स्ट्रक्चर मूव कर रहा है या कोई फोर्स लग रही है वो किस तरह लग रही है। तो अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है आपकी फिज़िक्स से कि इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वाज़ेह हो रही है, वो बता सकते हैं कि क्या हो रही है स्ट्रेस के वाले से, कि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई, इसमें क्या चीज़ आपको फील हो रही है कि क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रेस की रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। टेंसाइल स्ट्रेस। जी जी जी, बात मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। पर वो कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस हो सकती है। टेंसाइल और फोर्स की एक और डायरेक्शन भी तो है ना, तो इससे ये क्या पता लगता है कि इसके अंदर शीयर स्ट्रेस भी हो सकती है। देखिए फोर्स पैरेलल भी तो आ गई ना, नजर आ रही फोर्स पैरेलल, ये पॉइंट समझ आया। देखिए फोर्स, एक फोर्स परपेंडिकुलर आ गई, एक फोर्स पैरेलल आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, वही एरिया तो यही है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि आपको ये पता लगा कि अगर फोर्स एक ख़ास एंगल पे आ जाए तो फिर जो इस पर जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो ना तो प्योर नॉर्मल होगी, यानी 100% नॉर्मल नहीं होगी, 100% शीयर नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन होगा। ये पॉइंट समझ आ गया सारों को। जब फोर्स किसी भी बॉडी पे खास एंगल पे, जी 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 बोले बोले सर ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें जो भी आपने बताया। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और वो पॉइंट ये है कि लेट से एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, कोई ब्रिज हो सकता है, कोई भी रियल लाइफ स्ट्रक्चर। अगर उस पर लोड ऐसे आता है कि वो लोड उसके ना तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है ना ही एग्जैक्टली पैरेलल होता है, बल्कि किसी खास एंगल पे चला जाता है, सॉरी इसको हम कहते हैं क्यों, किसी खास एंगल पे चला जाता है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगी, इसमें जो स्ट्रेस पैदा होगी इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो फोर्स की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होगी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किस नेचर की होगी, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ना तो ये प्योर नॉर्मल होगी ना ही ये प्योर शेयर होगी, बल्कि इनफैक्ट इसका कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि इसमें शेयर भी होगी और उसके अंदर नॉर्मल भी होगी। ठीक है, किस क्वांटिटी में होगी, ये आप लेट से अगर ये कहना चाहें कि अच्छा अगर 100% स्ट्रेस है तो 60% नॉर्मल है, 40% टेंसाइल शेयर है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके थोड़ा सा हम मैनिफेस्टेशन अभी भी देखेंगे और फर्दर भी जब आगे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो इसको आप फर्दर देख सकते हैं। लेकिन ये फॉर श्योर बात है कि चूँकि इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, इसलिए एक कंपोनेंट जो है वो, मैं कन्फ्यूजन बचने के लिए ज़रा एक बार, एक कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल साइड पे है और एक कंपोनेंट इसकी ये लेट से ये वाला एरिया है, दिस इज द एरिया। एक कंपोनेंट एरिया के पैरेलल है और एक फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, पैरेलल। तो अब क्या हुआ, इससे हमें क्या पता लगा कि इसके अंदर दोनों तरह की स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करेंगी। हमने वो निकालनी है कि अगर ऐसा केस हो तो उस केस के अंदर
स्ट्रेस को डिटरमिन कैसे करते हैं, यानी कि स्ट्रेस जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस की क्वांटिटी होती है उसको डिटरमिन कैसे करते हैं। अब मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में बताया था कि जो इंजीनियर्स है उनकी जो मेजर स्किल होती है वो क्वांटिफिकेशन में होती है। क्वांटिफिकेशन से मुराद वैल्यू निकालने के अंदर होती है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद कि इसमें मिकदार कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैं आपसे कहता हूँ आप ठीक है सर मुझे इसकी समझ आ गई, अगला सवाल इंजीनियर्स के लिए क्या होगा, हो सकता है फिजिक्स वाला बंदा समझे कि ठीक है जी पैरेलल इतनी होगी परपेंडिकुलर इतनी होगी, सॉरी पैरेलल ये होगी परपेंडिकुलर ये होगी, ठीक है उसको समझ आ गई। बट नेक्स्ट स्टेप क्या है, कितनी होगी, वो फिर इंजीनियर्स की स्किल होती है। वो फिर ये बताते हैं कि और फिर ये बताते हैं कि कौन सी डोमिनेट कर रही है। अगर एक फोर्स की खास डायरेक्शन है तो क्या शियर स्ट्रेस डोमिनेट कर रही है या नॉर्मल स्ट्रेस डोमिनेट कर रही है। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया सर को? जी सर आ कोई सवाल है, समझ आ गया इसकी? ये आप अच्छा करें आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस वजह से कि इस स्टेप पे ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं पूछेंगे, आप ये कॉन्सेप्ट आगे जो कि हमने मैथमेटिक्स बिल्ड करनी है इसके ऊपर, अगर आप ये कॉन्सेप्ट बेस ही वीक होगी तो फिर आगे जाके हमें समझ नहीं आएगी। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। सो फर्स्ट मैं ज़रा इसको रब कर लूँ ज़रा। ओके, तो मैंने ये रब कर दिया जस्ट क्योंकि रिकॉर्ड तो हो ही गया, तो आप इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। ओके, सो वी हैव अ स्ट्रक्चर, लेट्स से इट्स अ 3D स्ट्रक्चर। सो लेट्स आई जस्ट ड्रॉ इट हियर। So it's like structure, the cross section is like this, sorry. This is its अगर आप इसको देखें डेप्थ के अंदर, इसको अगर आप इस तरह देखें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का है। सो वी हैव x एक्सिस विच इज़ दिस, we have y axis which is this, and we have z axis, ठीक है, which is this, ठीक है। so we have 3 axes of this structure, ये आपको 2D में नजर आ रहा है but it's a 3D structure, so we have 3 axes, clear, and this is called the neutral axis, this is called the neutral axis or longitudinal axis. This is the axis along the longest dimension of the body. Longitudinal means the axis along the length of the body. Length is generally higher than its cross-sectional dimension. This is called cross-sectional dimension. So this is called the longitudinal axis. The axis along the length of the body, or axis along the longest dimension of the body. Okay, then we have transverse axis, which is along the shortest or one of the short dimension of the body. So see, this is from the center, this is a very short axis or the very short dimension. So in this case we call it transverse axis, or sometimes called as minor axis or perpendicular axis. ठीक है, इसको आप हर तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, अच्छा लेट्स से अगर मैं बॉडी को ऐसे बना दूं तो फिर ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। इसलिए ये ध्यान में रखना, इसकी ओरिएंटेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, जिस साइड पे भी बॉडी की डायमेंशन लंबी है, ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट है, उसके एक्सिस जो उसके अलॉन्ग एक्सिस जा रहा होगा दैट इज़ कॉल्ड दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एंड दी माइनर डायमेंशन जो उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगी दैट इज़ कॉल्ड दी माइनर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस। सो अगर आप 3D व्यू में देखें, जिस तरह मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, तो ये बेसिकली इट्स लुक्स लाइक दिस, इट्स अ 3D बीम फॉर एग्जांपल, और 3D स्ट्रक्चर। सो एक्चुअली में अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो हर स्ट्रक्चर मोस्टली जो है जो मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि लोड बियरिंग एलिमेंट होता है, उसकी कोई ख़ास थिकनेस होती है, उसकी कुछ 3 डायमेंशनल होता है। आप बेशक आप अपनी गाड़ियों में देख लें, आप जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, पाइप्स होती हैं, बीम्स होते हैं, एंगल आयरन्स होते हैं, जितने स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं जिनसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये हमेशा जो है वो 3D होते हैं, लेकिन इनकी थिकनेस होती है। हम सिंप्लिसिटी के लिए 2D लेते हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि 3rd डायमेंशन में जो इसकी स्ट्रेस होगी वो वेरी नहीं करेगी, कांस्टेंट होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा भी नहीं होता। प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जो एक्चुअल जो इसका काम होता है वो 3D होता है, लेकिन हम उसको 2D में लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी।
अच्छा जी, एक इसको अब आप देखें, ये इसका 3D व्यू है, ये इसका 2D व्यू है. सो एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द एरिया. लेकिन आपको यहाँ एरिया नज़र नहीं आ रहा. एरिया स्टिल हेयर, बट यू कांट सी इट बिकॉज ऑफ टू डायमेंशंस. सो दिस इज एरिया वी कॉल्ड इज एट A naught. A naught is the cross sectional area. This is the cross sectional area of this structure, of the structure. ठीक है, this is the cross sectional area highlighted by this lines. So let's say we have a normal force which is acting like this, P. So what is the idea? The idea is the normal stress on this plane is theta naught. So while this naught is represented only to associate with this area, because area become different when this is the force and area direction become different. Sorry, angle will become different. So theta naught, which is the P over this area divided by this force, which is this, is applied here, and this is the same area. So theta naught, which is the stress on this area, is represented by theta naught or theta 0. So हम लोग theta naught ही कहते हैं इसको, sorry, sigma naught. So I'm sorry about the sigma naught. Sigma naught is, या sigma 0 is, sigma 0 ना कहें इसको, sigma 0 को मतलब कुछ और हो जाएगा. Sigma naught is equals to P over A naught. A naught is the area, P is the force. Now, if that same area has become oblique now at a certain angle, so you can say कि कैसे, तो मैंने आपको बताई कि लेट से एक गाड़ी है, गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे है, आप फोर्स इस पे ऐसे लग रही है, तो क्या हुआ, एरिया उसका एंगल क्या हुआ, देयर सर्टेन एंगल. सो सिमिलरली अगर एरिया प्योरली परपेंडिकुलर नहीं है फोर्स के, जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है, इस केस में द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स. बट यहाँ पे एक इशू आ गया है. वो इशू क्या है कि एरिया जो है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली perpendicular to the area, but in fact at a certain angle we call it as theta. This is a generalized case, so you can then specify to your own application whatever you want. Let's say windscreen generally have an angle of, let's say, around 45 degrees generically. So you can put in 45, you can find the actual force, actual stress on that windscreen. Now on windscreen, the most important force is a drag, air drag. So air drag, which is a kind of force, actually applies a certain angle to the windscreen, because windscreen is not straight but actually tilted in most of the cars. So on the windscreen you neither have a pure normal stress, neither you have a pure shear stress, but in fact you have a combination of both stresses. Clear? You have a combination of both stresses. Okay, let's move on. So if we have angle, which is this, the angle is between the vertical side and one of the plane, which is called as theta. This is theta. So the force remains the same. Now you cannot change the direction of force, because force is actually an external you can say parameter. जनरली अगर आप कभी नेचर में देखें तो जो स्ट्रक्चर पे फोर्स लग रही होती है वो सम टाइम आपके कंट्रोल में नहीं होती. फॉर एग्जांपल, अगर आप ये चाहें कि आपकी गाड़ी में जो हवा जो है वो इस तरह के बजाय ऐसे टकराए इस विंड स्क्रीन पे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हवा का फ्लो स्ट्रेट होता है. इसका मतलब है हवा का फ्लो आपके कंट्रोल में नहीं है. यानी कि आप इसको अगर टेक्निकल वर्ड में ज़बान में कहें तो क्या इसका क्या मतलब है कि फ्लो की डायरेक्शन या फोर्स का जो डायरेक्शन है या जो फ्लो का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से ना आप किसी तक कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, मैग्नीट्यूड भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो आपकी फोर्स जो बाहर से पैदा हो रही है, जो कि वो बाहर का एलिमेंट है, वो बॉडी का इंटरनल एलिमेंट नहीं है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है. ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. इसी तरह बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं, आप एक गाड़ी में सस्पेंशन है, फॉर एग्जांपल गाड़ी के जो जिसको आप शॉक कहते हैं, या
आप गाड़ी की सस्पेंशन कहते हैं, बाइक की सस्पेंशन कहते हैं। अब इसके ऊपर क्या आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? आप कहते नहीं, अगर मेरे पास ये, अगर हमारे पास बाइक है, ठीक है, और जो शॉक जो लग रहा है वो इसकी बजाय ऐसे आ जाए, ऐसे ना आए बल्कि ऐसे आ जाए, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो चीज़ बनाई है उसकी एक ज़मीन के साथ एक ख़ास तरह की डायरेक्शन बनेगी, वो वही बनेगी। वो आप थोड़ा बहुत तो डिज़ाइन से इसको वेरी कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट सारे समझे कि नहीं समझे? मैं इससे आपको एप्लीकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। ये आप लोग समझे कि यार पता नहीं क्यों पढ़े हैं, क्यों उसको टेढ़ा कर दिया, मैं क्यों एंगल पर टिल्ट कर दिया, ये सारा कुछ समझ आ रही है? यस सर। जी सर, और यस सर, समझ आ रही। ठीक सर है, इसमें तो जी पूछो। सर इसमें एक और केस भी हो सकता है, अगर ये जो बॉक्स आपने बनाया है इस पे फोर्स की लोकेशन चेंज हो जाए, टॉप कॉर्नर में चली जाए और सरफेस रिमेन सेम, तो सर इसमें इधर भी चली जाए, चेंजेस होंगे कुछ? इस यस तरह सर, कह रहे टॉप हैं? कॉर्नर पे अगर चली जाए, ये बिल्कुल 3D बिल्कुल, व्यू बहुत में जो फर्क पड़ आपने फोर्स सकता है। बताई हुई है अभी। जी बहुत फर्क, ये आप तो बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। हाँ, ये क्रॉस में लग रही हो सर, अगर उल्टी इस साइड पे, सर पुल, जिस तरह एक पर्सन पुल कर रहा हो इस बॉक्स को टॉप कॉर्नर से। टॉप कॉर्नर इधर से ऐसे कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं? यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक, इस पे फिर मोमेंट बनेगा वो। अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो फोर्स की इवन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, अगर उसमें भी फ़र्क आए तो इसके जो बिहेवियर है उसमें चेंज आता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट, वेरी राइट। सो इस वजह से ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं रियल वर्ल्ड में, बल्कि चंद केसेस में आप कंट्रोल कर सकते जो आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई चीज़ है। लेकिन जब आप नेचर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह आप ब्रिज बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, आप ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि विंड टरबाइन बना रहे हैं, या वैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे इंटरेक्ट करना है नेचर के साथ, तो फोर्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, उस केस के अंदर बेसिकली जो फोर्स और जो एरिया की ओरिएंटेशन को आप इंश्योर नहीं कर सकते कि वो परपेंडिकुलर या पैरेलल ही रहेगी, वो किसी भी एंगल पे हो सकती है। दैट्स वाई हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि वो किस तरीके से हम उसको फिर एस्टिमेट करेंगे। ओके, सो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, सो दिस फोर्स, नाउ दिस इज द एरिया विच कॉल एज ए थीटा। अब अगर थोड़ा सा अगर आप गौर करें इन दोनों चीज़ों को, तो दिस एरिया विच इज ए नॉट will be different from this a theta. A naught will not be equal to a theta. Everyone agrees? यस सर, यस सर। Very good. Then if that is not the same, so stress will not be the same. ये पॉइंट समझ आए? देखिए, अगर एरिया डिफरेंट हो गया तो स्ट्रेस भी फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज स्ट्रेस इज पी ओवर एरिया। सो इफ एरिया इज डिफरेंट, then definitely the stress will be different. It will not remain same on that obliquity. That is the problem. That is the problem that we need to address. Because अगर stress same होती है, हम कहते ठीक है एरिया इधर कर दो, 90 पे कर दो, 45 पे कर, 30 पे कर दो, जब स्ट्रेस से चेंज नहीं होना पे क्या फ़ायदा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब एरिया ही आप चेंज कर दें, फोर्स चेंज करें या ना करें, एरिया ही चेंज कर दें, तो स्ट्रेस डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। इसलिए अब आपको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो फॉर दिस फोर्स नाउ, अगर इस प्लेन को मैं ड्रॉ करूं तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ये आपके पास एरिया, एक फोर्स का कंपोनेंट वो बनेगा जो इस प्लेन के पैरेलल होगा, इसको हम वी कह रहे हैं, और एक फोर्स का वो कंपोनेंट बनेगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम एफ कह रहे हैं। यानी कि पी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। आप ये कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एफ वाई, एफ एक्स भी नहीं कह रहा प्लीज, इस पर कन्फ्यूजन होगी। इसको आप कह सकते हैं नॉर्मल, इसको आप कह सकते हैं पैरेलल। ठीक है, यानी कि इसको आप, सॉरी, इसको मैं एफ एफ पी कह रहा था। ये जो फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है, और ये कौन सी फोर्स है, ये पैरेलल फोर्स है। यानी कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक इस टिल्टेड एरिया जो कि ए थीटा है, इसका एंगल वर्टिकल फेस के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे, वो कोई भी हो सकता है, उसके जो नॉर्मल, उसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स बन गया उसको मैं एफ कह रहा हूँ, और जो इसके पैरेलल फोर्स बन गया उसको मैं वी कह रहा हूँ। और बाय द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्योरी आई कैन रिजॉल्व द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू
rectangular components, which is I can resolve the P into two rectangular components. One is along the parallel line, second is along the perpendicular. So ये बात हो गई. F is normal to the oblique section and V is tangent to the tangent means along the length, इसके parallel. अब थोड़ा सा इसको ज़रा फिजिक्स ज़रा गौर से देखिए. मैं अगर इस फिजिक्स को आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, दिस F विच इज़ सो एरिया क्या है, अगर मैं इसको मैं 2D में ड्रॉ करूँ, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द F. दिस एरिया इज a theta, clear, and the angle between this and एक सेकेंड. सो दिस F इज, अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको आपको एंगल को ट्रांसलेट करूँ, मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारा कुछ कन्फ्यूजन हो जाए एंगल को ट्रांसलेट करने में, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रा इसको यहाँ पे इंडिपेंडेंट ड्रॉ कर रहा हूँ. और ये आपके पास वी आर, और अगर आप गौर करें तो ये वाला जो ये थीटा है, ये वाला जो थीटा है, ये बेसिकली इस फेस के, वर्टिकल फेस के और इसकी ऑब्लिक फेस के दरमियान में, ठीक है. और मज़े की बात यह है कि इसका गौर से आपने देखना है, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी कि जो ये वाली जो लाइन, मैं दो एंगल्स की लाइन बता दूँ, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, सो दिस एंगल विल बी थीटा. ये मैथ का बड़ा एक सादा सा असूल है कि अगर दो लाइंस का आपस में एंगल थीटा है, इनके परपेंडिकुलर्स का भी आपस में एंगल थीटा ही होगा. ये पॉइंट समझ आ गया आप सारा को? अगर दो लाइंस का आपस में एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स का आपस में भी वही एंगल होता है. सो दैट्स व्हाई द एंगल बिटवीन F एंड P इज थीटा. ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने इस थीटा को ट्रांसलेट कर दिया कहाँ पे, फोर्स ट्राइंगल के अंदर या फोर्स वेक्टर्स के अंदर. ये किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लूँ. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि आप एंगल को कैसे ट्रांसलेट करते हैं. एंगल हमेशा ट्रांसलेट इस तरह करना होता है कि दो परपेंडिकुलर्स का आपस में एंगल ट्रांसलेट करना है. जब ये हो गया दिस, तो अगर आप इस वेक्टर को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वो फिर मिक्सर ही ना बन जाए. तो अगर हमारे पास इसको मैं यहाँ ट्रांसलेट करूँ तो ये वाला वेक्टर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. ये कौन सा वेक्टर है, V. अब देखें व्हाट इज F इक्वल्स टू. अब F क्या था, इसको मैं ज़रा रब कर लूँ, वो F इधर हो गया. अगर मैं ज़रा इसको अरेज कर लूँ F को, और रादर देन मैं यहाँ पे इसको, so this is F and this is V. So what F equals to, अगर आप देखें, this is now a right angle triangle, this is a right angle triangle. So F is the base, so F is equals to P, which is the perpendicular, into cos theta. So we know the base is nothing but the cos theta. So F is equals to P cos theta. And what is the area with respect to A naught? So this is, sorry, इधर बनाओ, this is A naught and this is A theta. So what is this equals to? So this area will be the cosine of, so we have basically two areas here, one is here and one is here. So this orientation will be the A theta and A naught, which is the base, this base,
this will be perpendicular, this will be this is the base, this is perpendicular, and this is hypotenuse. So the angle is always between the base and the hypotenuse. You all know that. This is the straight. So the angle, so this is A naught, which is the area of, A theta. So what we have to do is sigma theta, which is the stress along this plane, stress along the tilted plane, this plane. अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा रब कर लूँ, this plane which is the tilted plane, the stress on this plane is, because as I told you that A naught is not equal to A theta, then you can easily deduce that theta naught is not equal to sigma theta. So stress here is nothing but sigma theta. मैं थोड़ा सा शायद थीटा को कंफ्यूज कर रहा हूँ या बार बार बोल रहा हूँ सिग्मा थीटा, विच इज स्ट्रेस अलोंग द ओरिएंटेड प्लेन. तो सिग्मा थीटा is nothing but f over 8 theta. How do you know that? First of all, f is perpendicular to this inclined area, so that's why it must be normal stress, and the area is a theta, which is this. So f is perpendicular to a theta, this is the normal stress. So where f is equals to p cos theta, and p cos theta is the component of the p perpendicular to a, and a naught is equals to a theta cos of theta. So a naught, which is this, your base, which is this base, and that is equals to a theta cos theta by using a right angle triangle. Now we know that this is a theta, so a theta equals to a naught over cos theta. So interesting story comes out that sigma theta is equals to p cos theta, which is f, and this is a theta, which is a naught over cos theta. So the what is the conclusion? What is the decisive thing about this formula? This formula actually tells you that the stress along a particular orientation is nothing but p over a naught. Sigma theta is equals to p over a naught cos square theta. Cos square theta. वो भी यहाँ पे नीचे आ भी जाएगा. Yes. Sigma theta is equals to sigma theta equals to p over a naught cos square theta, or you know that this is nothing but sigma naught. So you can also write that sigma theta is equals to sigma naught cos square theta. So what we can conclude from this formula is, first, the sigma theta will not equal to sigma naught, and here the mathematics tells you that it is actually smaller by an angle of, by a factor of cos square theta. Now you know that these thetas cannot be greater than 1. So you know that cos square theta cannot be greater than 1. You know from your previous understanding of mathematics. This means that although the angles are it's again equal to 1 for extreme angles, but for angle for 0 degree it's equal to 1, but other than 0 this cannot be greater than 1. So what do you mean? What is the conclusion? The conclusion is that sigma theta cannot be greater than or always less than sigma naught. Sigma theta will always be less than sigma naught. This means that you can now realize that if the force or the area has been tilted, the sigma theta will be slightly less than sigma naught, and here you can conclude that some of the portion that's slightly reduced is converted into shear stress. That is the biggest manifestation of this mathematics,
Thus, when the area is oriented, because the stress on that plane will now be less than the normal stress, which is theta naught, sorry, sigma naught. So now this lesser component is transformed into shear stress, and that's what we see in the next slide. If you have any question, please do ask. पूछ लें दरमियान में ताकि आपको क्लियर हो जाए. अब हम आएंगे थोड़ा सा shear stress की तरफ. अब इस कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि इसके पैरेलल है. सबसे पहली बात यह है कि एक तो आपको बात बड़ी क्लियर है कि ये फोर्स विच इज़ V और ये जो एरिया है ये आपस में पैरेलल है. एक चीज़ तो आपको बड़ी क्लियरली समझ आएगी. अच्छा यार, अगर ये पैरेलल है तो कौन सी स्ट्रेस होगी? शेयर. शेयर. वेरी गुड. तो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में फ़ौरन आई, अच्छा यार इसमें तो शेयर स्ट्रेस भी है. अब वो जो मैं आपको बता रहा था पिछले स्लाइड में कि वो जो सिग्मा थीटा कम हुआ है थोड़ा सा, वो किधर गया है? वही चीज़ शेयर स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गई है. यही प्रॉब्लम होता है कि जब एरिया ओरिएंट करता है, टिल्ट होता है, तो प्योर केस नहीं रहता, यानी कि प्योर नॉर्मल या प्योर शेयर केस नहीं रहता, बल्कि इसका मिक्सर बन जाता है. सो अगर अब आप गौर करेंगे, वही मैथमेटिक्स हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आपको इसके पीछे ले जाऊँ मैथमेटिक्स के, तो फोर्स तो आपको समझ आ गई. मेरा ख्याल है पीछे अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये वाला वी वाला कंपोनेंट, अगर आप इसको देखें जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है ये वाला, तो वी क्या होगा? वी इज़ नथिंग बट पी साइन थीटा, बिकॉज इट्स अ परपेंडिकुलर. तो ये पी साइन थीटा हो गया. और जो एरिया है दैट इज सेम ए थीटा, सेम एरिया इज नॉट चेंज, एरिया इज सेम. ठीक है, एरिया हमारे पास क्या है? एरिया इज ए थीटा, दिस इज ए थीटा. सो टाउ क्या हुआ? टाउ इज वी ओवर ए थीटा. अब टाउ की यूज़ किया. टाउ इज अ कॉमन एब्रीविएशन फॉर shear स्ट्रेस. सो नॉर्मल स्ट्रेस हो तो आपने सिग्मा इस्तेमाल करना है दिस, और अगर shear स्ट्रेस इस्तेमाल हो तो आपने टाउ इस्तेमाल करना है. ये दोनों के दोनों ग्रीक एब्रीविएशंस हैं, यूनान की एब्रीविएशंस हैं. और बहुत सारी जो फिज़िक्स का काम हुआ 2-2.5 साल पहले वो यूनान ने किया था, इसलिए, या ग्रीक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए ज़्यादातर जो अभी हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर ग्रीक लेटर्स यूज़ होते हैं. तो ये जो सिग्मा है ये भी ग्रीक लेटर है, और जो टाउ है ये भी ग्रीक लेटर है. तो ये टाउ इज़ कॉल्ड shear स्ट्रेस. जब भी आपको ये टी की तरह डालते हैं, टी ऐसे आपने डालना है डंडा, और थोड़ा सा इसको नीचे जो छतरी होती है उस तरह आपने डाला था, जिसे कॉल्ड टाउ. सो ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का. तो टाउ विल बी योर shear स्ट्रेस. अगर आपको नहीं भी पता तो वो जो आम बंदा जो इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को समझता है वो देखते साथ ही बता देगा, अच्छा आप यार shear स्ट्रेस की बात करें. तो दैट इज़ द आइडिया. ठीक है. अच्छा जी, अब सेम इज़ द केस अगर आप गौर करें, वी इज़ पी साइन थीटा एंड ए नॉट इज ए थीटा कॉस थीटा. ठीक है. और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, यानी कि ये बेसिक आपके पास वी है और ये आपके पास क्या है? ए थीटा. सो आंसर विल बी पी ओवर ए नॉट साइन थीटा कॉस थीटा. सो सिग्मा टाउ थीटा इज इक्वल्स टू पी ओवर ए नॉट साइन थीटा कॉस थीटा, या टाउ थीटा इज इक्वल्स टू टाउ नॉट साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है. मेरा ख्याल है यहाँ तक सारों को समझ आ गया होगा कि जो स्ट्रेसेस और ऑब्लिक प्लेन है उसके अंदर एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं ख़ास तरीके से. अगर आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस हो, जिस तरह आपने देखा सिग्मा थीटा है, तो उसके बराबर होगी पी ओवर ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. अगर आपके पास shear स्ट्रेस अलॉन्ग दैट ओरिएंटेड प्लेन हो तो वो होगी पी ओवर ए नॉट साइन थीटा कॉस थीटा. अब कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? आप कोई बता सकते हैं आप में से कि टाउ थीटा बड़ा होगा या सिग्मा थीटा बड़ा होगा? ये तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है एरिया सर ये की. तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी राइट आंसर. ये हाईली डिपेंड करता है कि आपकी जो प्लेन की ओरिएंटेशन है वो किस तरह की है. ठीक है. अगर लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ अगर प्लेन इस तरह है कि वो इस तरह हो गया है, वो प्लेन यहाँ पे बिल्कुल ऐसे चला गया है, इस इधर लेट गया हुआ है, समझिए आप, समझिए इधर लेट गया हुआ है. तो मुझे बताएं सिग्मा थीटा की क्या वैल्यू होगी? सर इसमें तो फिर सारी shear स्ट्रेस ही आएगी.
सिग्मा थीटा 0 हो जाए। सिग्मा थीटा 0 हो जाएगा। और टाउ थीटा क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू आएगी वन सर होगा। टाउ मैक्सिमम थीटा होगा की। सर। हैं? कौन कैसे? आएगी सर? 0 हो जाएगा वो भी। ये भी 0 हो जाएगी ना? समझ आया कि नहीं आया? 0 हो जाएगी ना? सर शेयर तो 0 नहीं होगी। क्यों? यस सर, फॉर्मूला साइन देखें की ना। वजह से। अच्छा वहाँ पे साइन और इस- कोस दोनों है। देखिए cos 90 हो गया ना। cos 90 क्या होता है? साइन 90 तो 1 होता है। ये 90 डिग्री एंगल है ना। देखिए ये तो 90 होगा ना, वर्टिकल से एंगल है ना, ये देखें तो 90 डिग्री एंगल हो गया ना। तो cos 90 क्या होता है? 0। मेरी फिजिक्स तो नहीं खराब हो गई? नहीं नहीं सर ठीक है cos आपका 90 नो 0 सर। होता है, थीटा 0 हो गया। जी टाओ यहाँ पे भी cos 90 क्या हुआ? 0 हो गया ना। जीरो ये भी 0। इसका मतलब है अगर ये देखिए इस एरिया के ऊपर स्ट्रेस क्या होगी? इस फोर्स ओरिएंटेशन पे क्या होगी? 0 होगी। यानी कि इन ये जो जितने एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, और फिर इसके ये साइड वाले भी, इन एरियाज के ऊपर स्ट्रेस नहीं होगी। ये पॉइंट समझने वाला है। मैं आपको समझाना ही चाह रहा था। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ले जाए तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी मैक्सिमम इस तरह। अब आगे देखते हैं किस पे होती है। अब देखें दोबारा सेम, ये क्लियर हो गया, ये फार्मूला सारा क्लियर है, ये हम ऑलरेडी अब डिराइव कर चुके थे, ठीक है। अच्छा अब वही बात जो मैं आपको कर रहा था वो यहाँ पे आ जाएगी। इफ सिग्मा इज मैक्सिमम एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस कब मैक्सिमम होगी? जब ये वाला प्लेन जो है वो इस प्लेन के साथ अलाइन कर देगा। समझ आया? ये वाला सर, ये प्लेन जो इस प्लेन के थीटा साथ आएगा जी 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 सी थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे? सी ये तो थीटा थीटा find दो कैसे जगह से लिया करेंगे? जा सकता है, एक नीचे वाली सरफेस से भी और एक फ्रंट से भी। नहीं, ये देखिए वो तो फिर अगर आप इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपने ये जितनी तो वैल्यूज तो डेरिवेशंस की डिफरेंट हैं, आएंगे ना। हाँ जो आपने डेरिवेशन की है फिर उसके मुताबिक कीजिएगा, आंसर सेम आएगा। आप देखें ना। अब मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ। जो मैंने ये जो एंगल लिया था, ये जो वेक्टर्स बनाए थे, ये इस एंगल के मुताबिक बनाए हैं। अगर मैं एंगल ये ले लूँ तो फिर ये वाला एंगल वो नहीं होगा। आप करके देख ठीक है। लीजिए। आप कहेंगे मैं आपको एक करके भी दे दूंगा, आंसर विल बी द सेम। आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। वो थीटा तो आप कहीं से भी ले ठीक सकते है। हैं। हाँ ठीक है, थीटा आप कहीं से भी ले सकते हैं। उसने वर्टिकल, सर वो उसने यहाँ डायग्राम से बहुत लिया। कॉम्प्लिकेटेड थी, एक दफ़ा फिर समझा दूँ? बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अच्छा ये जो थीटा हम ले रहे हैं वो इस वाली वॉल से ले रहे हैं, ये इस वाली लाइन से। इसलिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, ठीक है, इस वॉल से। अच्छा ये डायग्राम जनरली क्या है? एक मेंबर है, एक 3D मेंबर है। 3D मेंबर से मुराद क्या होता है? कोई भी मशीन का कोई एलिमेंट है, मशीन की स्क्रू है, कोई कुछ भी चीज़ है, कोई एलिमेंट है। अभी हम एप्लीकेशन में डायरेक्टली नहीं जाते, एप्लीकेशन में बाद में जाएंगे। इसके अंदर स्ट्रेस जो फोर्स और एरिया की ओरिएंटेशन है वो परपेंडिकुलर नहीं है, ये मकसद था। और मैंने आपको एग्जांपल दी गाड़ी की विंड स्क्रीन की, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, वो फिर लंबी बात हो जाएगी कि बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जहाँ पे फोर्स और एरिया जिस पे फोर्स लग रही होती है वो हमेशा अलाइन नहीं होते। मतलब या 90 डिग्री पे 100% होते हैं या 0 डिग्री पे होते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उनकी कोई भी एंगल हो सकता है। अब इसलिए जेनेरिक किया है इसको हमने, ठीक है, जनरलाइज किया। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर फोर्स और एरिया आपस में अलाइंड ना हो तो फिर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी उस प्लेन के ऊपर जो कि अलाइंड है। जैसे मैंने आपको विंड स्क्रीन की सादी मिसाल दी। विंड स्क्रीन क्या चीज़ है गाड़ी की? ये वो स्ट्रक्चर है जिसको आपने टूटने से बचाना है। ऐसे ही है कि नहीं? विंड स्क्रीन क्या होती है? ये आप क्यों लगाते हैं? ताकि ये टूटे ना, आपको नज़र भी आए और ये ब्रेक भी ना हो हवा की वजह से। अभी जो विंड स्क्रीन है इसका और फोर्स का एंगल आपस में क्या होता है? आ गया ना एक एंगल के ऊपर। समझ आया? अब ये जो विंड स्क्रीन का एरिया है उसको आप ए थीटा कह सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये जो विंड स्क्रीन का एंगल है उसको आप ए थीटा कह सकते हैं और फोर्स को आप पी कह सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगी, वो अलग बहस है। लेकिन ये इसका मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि अगर फोर्स और एरिया की ओरिएंटेशन रियल वर्ल्ड लाइफ के अंदर एक परपेंडिकुलर या ना रहे, फिर कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे। दिस इज द वे टू ट्रीट इट। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कब होगी। नॉर्मल स्ट्रेस से मुराद वो स्ट्रेस जो परपेंडिकुलर एरिया की, वो कब होगी, जब थीटा आपके पास जीरो होगा, यानी कि ये वाला जो फेस है ये इसके साथ अलाइन कर देगा। यानी कि ये फेस अगर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दूं, अब नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम पे चली जाएगी। और ज़ीरो कब होगी, जब यही फेस जो है वो कहाँ पे आ जाए, इधर आ जाए। ये समझ आ गया सारा वो। ये और ये प्लेन अगर टिल्ट कर दें हम तो ये इसकी स्ट्रेसेस वेरी करते। इसी तरह शेयर स्ट्रेस है, उसके लिए देखें। अब शेयर स्ट्रेस में मसला ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, एक को कम करेंगे। मज़े की बात क्या है, थीटा ज़ीरो तो ये इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। ज़ीरो। सर। थीटा 90 हो तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ये मसला है शेयर स्ट्रेस का। जीरो। ये उस दोनों प्लेन्स में मैक्सिमम नहीं होती। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है दोनों के 45 डिग्री के ऊपर। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे ये कैसे, ये इस तरह कि आप चेक करके देख लें, इससे ज़्यादा वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकती। अगर आप देखें दोनों की वैल्यू होती है सेम, 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं। अगर आप कभी ये साइन और कॉस कर्व आपने बनाई होगी, लेकिन मैं अगर आपको एक दफ़ा चले यहाँ थीटा लिखता हूँ तो आपको याद होगा साइन होता है ऐसे, ठीक है, और कॉस होता है ऐसे। तो इसे गलत बन गई इस तरह। तो ये जिस पॉइंट पे कट सेम वैल्यू, दैट इज दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। ठीक है। इस एंगल के ऊपर ये दोनों वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी रीचेस टू इस मैक्सिमम। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो साइन 45 इज √2/2 और दिस इज ऑल्सो √2/2। सो द आंसर विल बी मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी P/2A0। अब जो सिग्मा मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, P/A0। ये पॉइंट समझ आ गए। सिग्मा मैक्सिमम क्या होता है, P/A0, और सिग्मा मैक्सिमम क्या होता है, P/2A0। सो अगर आप इसको डिवाइड करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो यू विल गेट टाउ। सो यू गेट दिस आंसर, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम ओवर 2। यानी कि जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगी वो नॉर्मल स्ट्रेस के भी आधा होगी। जो मैक्सिमम पॉसिबल shear स्ट्रेस हो सकती है किसी भी स्ट्रक्चर में, वो नॉर्मल स्ट्रेस से एक्सीड नहीं कर सकती। ये पॉइंट सर को समझ आया। जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस के कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती, बल्कि हमेशा उससे मैक्सिमम में जो जा सकती है वो कहाँ तक जा सकती है, वो आधे तक जा सकती है। ठीक है। सो अच्छा, अब अगर आप इसकी ज़रा इसको ड्रॉ करें तो बड़े मज़े का ये ग्राफ बनता है। ये ग्राफ है, अगर आप इसको स्ट्रेस और एंगल के रिस्पॉन्स से ड्रॉ करें। ये यहाँ पे स्ट्रेस है 0 to 1, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे θ0 है, और ये एंगल 90 है। तो आप गौर करें तो ये नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे वेरी करती है और shear स्ट्रेस ऐसे वेरी करती है। यानी कि वो आप कह लें कि दो क्वार्टर सर्कल आपस में इन्वर्टेड होते हैं। ये क्वार्टर सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ये क्वार्टर सर्कल इन्वर्ट हो रहे हैं और ये एक पूरा सेमी सर्कल है। आप बेशक इसको ड्रॉ करें मैटलैब पे, एक्सेल पे, तो आपको नजर आएगा कि ये बेसिकली एक दूसरे के इन्वर्टेड है। मेरा ख्याल है कि इसको हमें 2 लेक्चर पार्ट्स में करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम शुरू में ही पहुँचे। तो मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ पे एंड करके फिर हम आपका तो तास्ता लेक्चर है आपका 1 बजे के बाद कोई?
सर यस 1 सर, बजे के बाद सीवीटी का अभी जो रेंज। अच्छा तो उनसे कहना था ना फिर एक ही दफ़ा ले लें, आप ब्रेक में क्यों लिया है मैडम ने, क्यों अरेंज किया? सर क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल भी है ना, इलेक्ट्रिकल के साथ हमारा होता है तो उनकी स्लॉट इसमें खाली थी। नहीं तो आपने 20 मिनट के लिए क्या पढ़ना है फिर? मुझे तो ये सर बस पता असल नहीं, में मैम ये ने बस बोला कि मैं असल में ये डिसकंटिन्यू नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब वो अजीब ही काम हो गया। मैं ज़्यादा 12:15 तक हम पढ़ के इसे ख़त्म करें। सर अभी क्लास है तो चलें ठीक है, मेरा ख्याल है कि मुनीर फिर अरेंज भी करवा सकते हैं, मैम से बात कर नहीं लेते हैं। सर मैंने मैम से बात की थी, वो बोल रही थी कि मैंने सुबह बोल दिया था, तो क्योंकि मैंने सुबह कन्वे किया, मैंने इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को भी कन्वे किया मैसेज। अच्छा चलें चलें ठीक है। अच्छा चलें, मेरा ख्याल है कि फिर इसको यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। और मेरा ख्याल है कि चूँकि अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा है कि जो उसे क्लास में समझ आएगा, तो मेरा ख्याल है मैं उसे क्लास में कंटिन्यू कर लूँगा और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इनफ है, ऑल्दो बहुत कम टाइम था, लेकिन चले खैर कॉन्सेप्ट भी थोड़ा मुश्किल था, इसको समझ लें। लेक्चर में अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, होपफुली इंशाल्लाह आधे पौने घंटे में, तो आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो इसको भी समझें ताकि नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट वीक में आए तो हम थोड़ा सा अब थोड़ी सी फेस को थोड़ा फास्ट करेंगे थोड़ा सा, ताकि आप हमने जो है ना वो 5-6 चैप्टर कवर करने तो हम इंशाल्लाह से कवर कर सकें। ठीक है, एनी क्वेश्चन, ओके सर। फाइनल कमेंट्स? ठीक है सर। ओके सर।